वेलकम बैक टू रमज़ान फ़िज़ा नाज़रीन। बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई है और जिससे कि खूबसूरत का वर्ड बिन अगेन यूज़ किया विच इज़ माई बाय वर्ड अकॉर्डिंग टू हिम। मैं जाना चाहूँगी हनी अलबेला साहब की तरफ। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक फ़िल्म रिलीज़ हो गई है या नहीं, इस हवाले से मुझे बताएं। मुझे कुछ नहीं पता, आई एम ज़ीरो अबाउट इट। अच्छा जी, चोरा नाल यारियाँ। जी 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 ये कोई 1.5 महीना पहले रिलीज़ हुई है और वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई है। इंडियन पंजाब की फिल्म है और बहुत अच्छी गई है। और इसी तरह एक और वो है अपना, वो भी फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। 2 3 4 फिल्में डॉक्टर साहब कीतियां ने ਹੁਣ तक ना पता है सर जी। ਜਿਹੜੀਆਂ अपना बैक टू बैक आ रही ने। कुछ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ? मेरा ख्याल कोलैबोरेशन सिनेमा ही बेहतर रहेगा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਲਾਤਾਦਾਦ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀਆਂ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, चोरों का टाइटल कैसा लगा आपको? ये वो चोर है जो ना पैसा चुराता है, ना कोई जायदाद, ना कोई, ये दिल चुराता है। किस किस्म का चोर है ये मोहब्बतें चुराता है, दिल चुराता दो है। लोगों के दुख चुराता है, गम चुराता है। यानी कि वो जैसे एक पुराने जमाने में था जो चोरियां करके लोगों की मदद करता जी था। जी जी नाम भूल गई मैं। हाँ जी जी। वैसा करेक्टर है ये आपका। उस तरह के रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, यस रॉबिन 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, तो वो उनकी कोशिश ये है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करन जिद वजह तो लोगों का भला हो। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਿਖਾਈ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ। ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਬਾਤ ਚਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। He was from Scotland. नहीं जानी, he was from Nottingham. Nottingham. And because the Sherwood Forest is next to yes. Nottingham. बिल्कुल ਅਸਲ ठीक है 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਮਿੰਗਮ जी। ਬਰਮਿੰਗਮ, ਨੋਟਿੰਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨੂੰ, Birmingham बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ बिल्कुल ਅਲਬੇਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ Absolutely. ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹੋਮ। जी, it is like home। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਜਿੰਗਲ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਵਾਕਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ऑर्गेनाइज्ड हो ਵਿੱਚ जाए, थोड़ी सिस्टमेटिक हो जाए। साड़ी भी प्रॉब्लम सिर्फ आपस में नहीं, लोगों में से कुशादा जी ही। लोगों से कुशादा, वाह वाह। हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो पंजाबी, इवन सिख यात्री आते हैं, तो आम एक गरीब रेडी वाला भी जो है वो उनसे पैसे नहीं वो ले रहा है, कुशादगी दिलों की जो है वो। इन्होंने भी जिक्र किया कि इनकी एल्बेला प्रोडक्शंस बर्मिंघम में है। मैं आपको बहुत पीछे लेकर चलता हूँ। आपको शायद याद हो, एक जगह थी बर्मिंघम में, उसका नाम था OSA, ओरिएंटल स्टार एजेंसी। याद है आपको? किसी को भी याद नहीं होगी सिवाय तेरे मेरे। जी जी। अच्छा, वहाँ पे भी उसका बहुत बड़ा काम था। और मैं आपको शहर बताऊँ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बुनियादी तौर पे हमारे, आपने सुना उसका, पाकिस्तानी मौसीकारों गुलकारों की आवाज़ों को बेहतरीन शुरू में वहाँ रिकॉर्ड किया गया। कवालियाँ भी सारी वहीं पे हुई। आपने मगर यहाँ भी अपना एक म्यूज़िक का इदारा बनाया हुआ है। जी जी। कुछ उसके बारे में बताइए, बहुत कम लोगों को पता है। ये इदारा तो खैर जो है वो खुशकिस्मती से नुसरत फ़तेह अली खान साहब के होते हुए ही जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। और संग बुनियाद जो है वो हाजी इकबाल नकीबी साहब थे। तो सरगम स्टूडियो के नाम से उसको जो है ना, वो जो लेटली मैंने सरगम रिकॉर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया।
और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे खान साहब का एक चीज़ थी जो उनकी तरफ से हमें वसातत में उनकी वो मिला, वो ये था कि वो बहुत वार्म वेलकमिंग थे। मैं एक जो है ना वो वाक़या ज़रूर अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद आज तक कभी वो किसी ना, क्योंकि इंडिया से उन दिनों में काफ़ी यात्री आते थे, दाता साहब सलाम करने के लिए भी आते थे, इवन दाता साहब आके कव्वाली करने के लिए भी बहुत सारे लोग। तो एक फ़ीमेल कव्वाल जो है ना वो आई, और यहाँ पे अभी भी आज भी इवन बोल कफ़ारा से पहले तक यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई फीमेल वोकल्स जो है ना वो होगी। और इसको बड़ा, जैसे आपकी वो बात है कि औरत जब कमाना शुरू करती है तो या किसी भी सन्फ में आगे आना चाहती है तो एक इनसिक्योरिटी होती है माशरे में। तो उस ज़माने में बिल्कुल मायूब समझा जाता था। तो हाई साहब तो बिल्कुल ही आपको पता है जिस तरह उन्होंने बुला लिया घर पे, इकबाल टाउन वाले घर पे महफिल थी, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत ही बेसुरी थी। इवन उनको बोल बांट का भी नहीं पता था, लेकिन खान साहब ने उनको ऐसे बैठ के सुना कि जैसे वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है, और उनको दाद भी दी, उनको पैसे जब वो दे रहे हैं तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी कव्वाल है। जैसे ही उनको रुखसत किया तो खान साहब भाई साहब को कहते हैं बहुत। तो जब उन्होंने ऐसे किया, आई वॉज चाइल्ड, मतलब मेरी अर्ली वो एज थी, तो तब मुझे पता चला कि ये कोई अच्छी कव्वाल नहीं थी। अदरवाइज जो समा उन्होंने बांधा हुआ था तो वो इतने वार्म वेलकमिंग थे। फिर जब उनकी तबीयत ख़राब हुई एंड ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म कव्वाली, तो लास्ट उनके जो 2-1 साल हैं उसमें उन्होंने सिर्फ एल्बम्स रिकॉर्ड किए। तो उन्होंने हमें हुक्म दिया कि जितने भी कव्वाल हैं, इवन जिनके घराने के साथ कुछ मसाइल भी चल रहे थे, सबको बुलाओ और सबको रिकॉर्ड करो। अच्छा, वाह। तो डॉक्टर साहब, मैंने जो कव्वाली से मेरा जो रिश्ता अब जाके लोगों के सामने आ रहा है, मैंने उस ज़माने में 128 कव्वाल जो है ना वो रिकॉर्ड किए। जबरदस्त। तो वो एक ऐसा जो है ना तजुर्बा है जी जी। बड़ा। उसके बाद फिर जब वो चले गए तो शायद उससे किसी और ने सीखा या नहीं, लेकिन आज आप जो देखते हैं 2-2.5 लाख कव्वाल जो इस वक्त हैं, वो शायद वही एक वजह है कि उन लोगों को लगा कि नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो ज़रूर एक मेराज थे कव्वाली की, बट हम भी फुट स्टेप पे जाके उनके करीब कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम उनको जो है फॉलो तो कर सकते हैं। तो आज आप देखें कोई भी कव्वाली के नाम पे जो है ना वो कॉमेडियंस भी जो है वो भी बाजा खोल लेते हैं। तो ये वो जो है ना चेन चलती आ रही, हम कह सकते हैं। जी जी, ये वो जुर्रत है जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने दी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो किसी ने मतलब मैं आई एम द आई विटनेस, किसी ने पूछा कि खान साहब सुर जब लगाते हैं तो क्या कोई ऐसा कुलिया बताएं कि पक्का ही लगे, तो कहते हैं आपका यकीन, आपने जब सुर लगाना है तो आपको यकीन होना चाहिए कि पक्का ही लगेगा, वो लगेगा। तो ये अभी थोड़ा सा मैं देख रहा था ना, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि कोई जितना बड़ा मम्बा आपके पहलू में बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी खुशनसीबी होती है। इवन अगर कोई डांट के, तो उसका मतलब होता है कि वो आप पे और ज्यादा जो है ना वो शफकत और मेहरबानी और इवन आपको ऑन कर रहा है। मैंने जितना सीखा है वो उसमें 90% जो है ना, सॉरी, वो डांट का जो है ना वो उस वक्त लगता था कि पता नहीं शायद ये विलन है या फिर मुझे जान से मार देंगे, बट आज उन्हीं की वजह से जो है ना वो इतना बोल पाते हैं, इतना लिख पाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मेरे बिल्कुल फादर के जैसे सीनियर है और मेरा इनसे इस तरह से कनेक्शन भी है कि हम लोग PSRD